Good morning, dear friends. Today we will start with once again ray optics. After completing the ray optics, we will go for the optical instruments. So today I think it's better to start with some problem solving. So let's start with the problems on prism. What are the problems I am taking now? Those are very important. So we will start with the problem solving. Take down the problem number 1. Let me read that. White light is passed through a prism of angle 5 degree. If the refractive indices for red and blue colors are 1.641 and 1.659 respectively, then calculate the angle of dispersion between them. Calculate the angle of dispersion between them. So this is the problem. So what is asked? Angle of dispersion is asked for us. Okay. And what is given? Okay. Given is refractive index of blue and red colors. Okay. And we have to find out the angle of dispersion between them. Okay. So that was the point. So let us start with the actual solution of the problem. First of all, the case is that white light is passed through a prism of angle 5 degree. So A will be 5 degree. So white light is passed. So one red and one blue will get. Okay. So first of all, let me show you the scenario. So if it is for red color and if it is for blue color, I'll write this to be red and this to be blue, because red will deviate least as compared to red. Deviation of blue will be more. So this is delta R and this is delta B. Okay. So it is the white light. So this is the problem. How to solve the problem? That's we will start analyzing. So friends, what will happen? Is that A is given as 5 degree. If the refractive indices of red, so mu R is given. कितना दिया mu R? 1.641 and mu B is 1.659. They are given. And theta is asked. Theta will be delta B minus delta R. So it's very simple. No need to be making much trouble about that. Delta R and delta B we have to find out, and then we have to find out theta. So yesterday only I told delta B will be mu B minus 1 into A minus mu R minus 1 into A. So how it will look like? Yesterday only I gave the formula. Mu B into A minus mu R into A plus A. So this A will cancel out and we will remain with mu B minus mu R into A. तो बेटा यहाँ पे mu B कितना है? 1.659 minus 1.641 into 5 is given, 5. So theta will be 9 minus 1, 8, 5 minus 4, 1, 6 minus 6, 0. So 18 5s are 90, 0.09. So let us check what is the angle. So angle, it is correct answer. So theta will be, इसको कैसे बोलेंगे? 0.090 degree. So the angle of dispersion between the blue light and the red light
will come out to be 0.090 degree. So let me again explain the problem in detail. White light is passed through a prism of angle 5 degree. A is given as 5 degree. If the refractive indices for red and blue color are given 1.641 and 1.659 respectively, calculate the angle of dispersion between them. आपको यहाँ पे पता होना चाहिए blue color will deviate more than red color. Blue color will deviate. अगर blue color deviate ज्यादा करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल्टा बी विल बी मोर देन डेल्टा आर. तो अगर डेल्टा बी ज्यादा है, डेल्टा आर छोटा है, तो अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा? डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर. तो ये कहां से लिया हमने फॉर्मूला? तो yesterday only I told you, if we are considering for two different colors, then the refractive index for the given material of the prism will change accordingly for different colors. For white light, if you are taking white light, glass, air, no problem, it will be 1.5, no problem. But if you are considering different colors, that's why they have given two different refractive indices. So that was all about the problem number 1. So I will suggest you to note this down, then we'll go for the problem number 2. इसको note down करो. हो गया बेटा? अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए. तो लिख लो बेटा, मैं फटाफट प्रॉब्लम आपको बताता हूं. प्रिज्म एंगल is 10 degree. If prism angle is 10 degree, let me write problem number 2. Angle of prism बोलते हैं. Angle of prism is 10 degree. The refractive index for red and violet colors is there. Refractive indices you have to write index for red and कौन सा कलर दिया? violet colors is 1.51 and 1.52 respectively. Then find the dispersive power. Then find the dispersive power. Okay, so now again dispersive power का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है. ओमेगा मैंने क्या बताया? ओमेगा विल बी थीटा अपॉन डेल्टा वाई, where theta is the angular dispersion. थीटा क्या बन जाएगा आपका बेटा? एंगुलर डिस्पर्शन बन जाएगा. एंड this will be angle of deviation for mean color. इसको मीन कलर बोलते हैं. तो ये मीन कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं दिखाता हूं. तो ओमेगा यहां से क्या बन जाएगा बेटा? तो ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा विल बी थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है अपना? डेल्टा विल बी म्यू माइनस 1 इंटू ए. देयरफॉर डेल्टा V विल बी म्यू V माइनस 1 इंटू ए. डेल्टा R विल बी म्यू R माइनस 1 इंटू ए. और डेल्टा Y बन जाएगा म्यू Y माइनस 1 इंटू ए. But as we are calling this to be mean light, then mu y can be written as mu r plus mu v by 2. mu r कैसे करेंगे? mu v plus mu r or mu r plus mu v upon 2, because it is a mean color. Since it is mean color, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखते हैं. तो ये जो 3 वैल्यू है जो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिए हैं, नंबर 1, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2 और ये म्यू का वैल्यू, अगर हम वहां पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? ओमेगा विल बी डेल्टा वी मतलब म्यू वी माइनस, इसका भी हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू
A और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2। देयरफॉर अगर ये इसका कंप्लीट करें तो ओमेगा में क्या मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर इंटू 2a। a तो दिया है आपको एंड फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। म्यू वी भी आपके पास है लेकिन हाँ अरे बाप रे लेकिन आपके पास हाँ म्यू वी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट कलर भी आपके पास है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी वायलेट कलर 1.52 रेड कलर 1.51 अपॉन 1.52 प्लस 1.51 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10। तो ये कितना बन जाएगा बेटा ओमेगा विल बी इसमें से 0.01 इंटू 20 अपॉन 3 दिस इज 0 दिस इज 3.03 तो ये बन जाएगा 21 सा 20 0.2 अपॉन 3.03 तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा 2/30 दैट इज 1/15 0.06 आएगा। कितना आ रहा है वो देख अरे यार ये थोड़ा सा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 15 0 10 आ गया 100 सो दिस विल कम आउट टू बी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इनका आंसर कितना आ रहा है 0.019 मतलब 2 आ रहा है, ठीक है ओके। तो इसको भी हम लिख के लेते हैं। तो इफ आई विल राइट दैट ऑल्सो अरे हाँ इसमें मैंने -1 नहीं किया है, ये हो गया म्यू वाई ना। हाँ इसमें से -1 करना पड़ेगा। हाँ बराबर तो ये पूरा अपना चेंज हो जाएगा। सो वी विल चेंज अकॉर्डिंगली। व्हाट विल हैपन ओमेगा विल बी अभी क्या हो जाएगा बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे म्यू आर प्लस म्यू वी माइनस 2 अपॉन 2। तो अभी ये 2 ऊपर जाएगा, अभी ये 2 ऊपर जाके ये बन जाएगा 2a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2 म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2। तो अभी अपना कैलकुलेशन ठीक आएगा 2 इंटू 10 म्यू वी कितना बन गया 1.52 माइनस 1.51 डिवाइडेड बाय 1.52 प्लस 1.51 माइनस 2। तो ये कितना बन गया 20 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना बन गया 0.01 डिवाइडेड बाय ये कितना बना था अपना 3.03 माइनस 2.00। तो ये कितना बन गया 0.2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 ओके 0.03। तो अभी कितना बन गया ये बन गया 200 अपॉन 200 by 3 okay so let's check that 21s are 20 0.2 3.03 0.03 yeah तो 0.2 upon 0.03 तो 2 को किया 0.3 20 by 3 हो जाएगा। so that will come out to be my answer okay। so let's go for the next problem now। so I hope you have understood that okay। so अगले प्रॉब्लम के लिए जाते हैं। अगला प्रॉब्लम है अपना the refractive indices of flint glass for red and violet color are the refractive indices of flint glass। there are different type of glasses है ना। so flint glass is one of the type okay। so its refractive index will be different than our normal regular glass। so अभी हम देखते हैं refractive index of flint glass okay। so problem number 3 क्या है दिया है आपको problem number 3 दिया है the refractive indices of flint glass for red and violet colors
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.644 एंड 1.664 एंड 1.664 रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से कलर के लिए दिया है? रेड के लिए दिया है, वॉयलेट के लिए दिया है। ओके, और क्या पूछा है? कैलकुलेट इट्स डिस्पर्सिव पावर। तो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ दूं, कैलकुलेट इट्स डिस्पर्सिव पावर। तो आंसर लिख के देता हूं आपको 0.0305 ये आएगा आपका आंसर। ओके, तो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, मैंने बोला था होमवर्क, लेकिन it will be maybe difficult for you to solve that, so it's my duty to solve it. Okay, तो अभी क्या है? refractive indices of flint glass for red and violet color। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? म्यू आर दिया है अपन को, म्यू आर कितना दिया बेटा? म्यू आर दिया है 1.644 एंड म्यू वी कितना दिया बेटा? म्यू वी विल बी 1.664। ओके, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर। तो अपना डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो अभी अपन ने क्या किया था? वी हैव कैलकुलेटेड द जनरल फॉर्म फॉर द डिस्पर्सिव पावर। डेल्टा वी कितना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कितना बन जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 माइनस 1 इंटू ए, बराबर। हाँ, तो ए, हाँ पिछले एग्जाम्पल में भी ए कैंसिल हो जाएगा, वो थोड़ा देखो। लास्ट एग्जाम्पल आई हैव नॉट कैंसिल्ड ए, दैट्स व्हाई द आंसर वाज कमिंग रॉन्ग। इट विल कम 10/3 1/3। देखते हो उसको, देखो आप जरा फिर से रिवाइंड करके उसमें देखो, उसमें भी शायद ये कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने इधर किया कैलकुलेशन तो मेरे को पता चला। तो ये कितना बन गया? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 माइनस 1 बन गया। तो कितना आता है? 1.664 माइनस 1.644 डिवाइडेड बाय 1.664 प्लस 1.644 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 minus 4 0, 6 minus 4 2, 6 minus 6 0, 0.02, 4 4 8, 10, 13 carry 1 upon 2, so 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 0.040 upon 3.308, so that you calculate, it will be surely 4/33 something, and you check the answer for that. Are you getting my point? Okay, so here you may do this thing. यहाँ पे कौन सा आएगा? इसका डेल्टा वाई कितना आएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए लेना भूल मत जाओ। और म्यू वाई हमने कितना लिया था? म्यू वाई, ये आपको फिर से दिखाता हूँ, म्यू वाई विल बी म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 बिकॉज इट इज मीन, सॉरी, इट इज अ मीन कलर, वो मीन कलर है, इसलिए उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, चेंज मतलब उनका जो मीन है वो अपना सबका मीन बन जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर प्रिज्म। ओके, नाउ एक आपको होमवर्क ले लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, वो आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसका स्नैप भेजता हूँ बाद में, ठीक है? ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टर्म, that is called as the optical instruments. So friends, now we will start with some optical instruments. So optical instruments can be categorized into two types. So first part of the optical instruments is microscope. Number 1, microscope, and second part is telescope. So they can be divided into two types. So whatever is the microscope, so
the objects will be near. To visualize objects at higher magnification. To visualize the objects at higher magnification. मतलब objects, nearer objects. Nearer objects. So objects will be nearer to you. So the magnification will be 10x, 20x, 50x, 100x. It means that 10x means the image will be 10 times of the size of the object. Okay. 20x image will be 20 times as the size of the object. 50x, the image will be 50 times as the size of the objects. In that way we will see. So now microscopes also, they can be categorized as number one, simple microscope. So simple microscope means our regular magnifying glass with which we can see the objects. That is called as a magnifying glass. So that serves as a simple microscope. कहीं भी आपको मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और एक से ज्यादा अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. So in the header of microscope we will learn today two type of microscopes. One is called as the simple microscope and other is called as which is compound microscope. Now telescope. What is the telescope? And telescope is used to observe the far distant object. Okay, to observe far distant objects. For example, trees, hills, etc. Long distance. You have to observe from the hill. If you will go in Polatpur, there is a point at which they are set one small telescope, and they have written at the down that it's Pratapgarh Darshan. So from there you can see the view of Pratapgarh. From where? From Polatpur. So the aerial distance and the regular distance, that will be in some kilometers, but that hilly region is there. So like that it is there. Here is the hill of Sahyadri and these hills are continuing here. So somewhere here if the Pratapgarh is there, so from this hill there is a ghat station of Polatpur. So from somewhere from here you can able to visualize with the help of telescope. So this one is the actual application where we can use. But telescope can be categorized again into many different types. One is called as the terrestrial telescope. Terrestrial means whatever I told, na? Trees, distant object, distant hills, like that you can visualize. That can be called as the terrestrial telescope. And another is having still higher magnification. Another is having still higher magnification. That is called as the astronomical telescope. So another one which is having higher magnification, what we can call it as astronomical telescope. Okay. So first we will start with our discussion with simple microscope. So number one, we will start with simple microscope. So beta, in simple microscope we will try to learn the case 5 which we have studied in the lens. When the object is kept between the focus and the optical center. So before that, let me start with one case at which object is exactly at focus. If the object is exactly at focus, what I told you, the image will be at infinity. That we have already learned. So this is not possible. They will never meet. So image will be at
at infinity and it will be highly magnified. So if image is at infinity and highly magnified and real and inverted, ऐसे हो जाएगा ना, बड़ा वाला इमेज मिल जाएगा. So if it is highly magnified and real and inverted, we will not use this case for your simple microscope. So which case we will use for the simple microscope is object kept between focus and optical center. So case in which object is kept between, क्या क्या बोला मैं, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. सो ऑब्जेक्ट हमारा किस किस के बीच में है? ऑब्जेक्ट तो है अपन का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. तो डायग्राम कैसे बनेगा वो दिखाते हैं. तो डायग्राम बनता है, दो डायग्राम बनता है. जो मैंने आपको पहले केस दिखाया था वो भी बनता है और दूसरा भी बनता है. सो यहां पे नंबर 1, टू गेट इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अपन को इमेज कहां लेना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे हम? उसके लिए एक डायग्राम कंसीडर करते हैं जिसके लिए हम ये हुआ अपना प्रिंसिपल एक्सिस. अरे यार डायग्राम ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक से लाइन बनाते हैं इसका. ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको. ठीक है, तो ये बन गया अपना लेंस, ये बन गया फोकस. तो आपको ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखना है. दिस विल बी माय ऑब्जेक्ट. तो ये बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. बन गया. तभी rays from the object we will try to draw. तो A करे तो आप ऐसे लिखोगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस which will go through the focus. तो यहाँ पे सपोज उसका फोकस लेते हैं ऐसे, और एक रे जो है वो ऐसे जाएगा, है ना. बन गया. ये थोड़ा सा ठीक कर लेते उसको, ठीक नहीं है, ऐसा कर लेते इसको. तो भी आप समझ सकते हो इसको. अगर मैंने इधर मैंने ऐसे बढ़ाया और इसको मैंने इधर से बढ़ाया तो इस पॉइंट को मेरे को मिलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड. तो ये मेरा क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम माय वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो ये बन गया मेरा इमेज. तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा इमेज डिस्टेंस. ये क्या बन जाएगा? इमेज डिस्टेंस. सो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस. और हम कहां से देखेंगे इमेज? इमेज हम यहां से देखेंगे, दूसरी साइड से. इमेज कैन बी सीन from other side. It's very important. Image can be seen from other side. दूसरी साइड से हम इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. This is very important. Image can be seen from other side. तो ये मेरा लेंस बन गया. तो ये लेंस बन गया और least distance of distinct vision, इसको बोलते हैं D. तो यहाँ पे v विल बी इमेज डिस्टेंस. सो यहाँ पे v क्या बन जाएगा? v विल बी इक्वल टू d.
v को क्या लेने का, d लेने का। तो यहां पे so what we have observed, in order to get, you may note down, no problem, in order to get image at least distance of distinct vision, that is v is equal to d, we keep object in between focus and optical center। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 focal length of the lens, and second ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां पे हम ऑब्जेक्ट सिचुएट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ मच विल बी द मैग्निफाइड इमेज आई विल गेट, एंड इमेज पोजीशन इज फिक्स्ड, इमेज वी वांट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू कीप exactly orient the object distance such that we will get the image at least distance of distinct vision। Are you getting my point? Okay। तो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर पढ़ने से पहले मैं आपको क्या बोलता हूं, आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, दिस डायग्राम आपको नोट करना होगा, बिकॉज इसके बाद हम थोड़ा सा एनालिसिस में चलेंगे। सो इट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल subtended by object unaided। Unaided means without lens, it's very important, huh? Without lens। तो अगर मैंने मैग्नीफाइंग पावर will be the actually equal to tan beta upon tan alpha, but for small angles it will be nearly equal to beta upon alpha। तो मेरा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, बीटा अपॉन अल्फा बन गया बेटा। ओके ठीक है, तो ये बीटा अपॉन अल्फा कैसे लिखने का है दिखाता हूं। सपोज ये मेरा इमेज है, तो यहां पे ही दिखाता हूं। तो ये जो बन जाएगा एंगल मेड बाय द इमेज, ये बन जाएगा बीटा। ये क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां से अगर वैसे ही ऑब्जेक्ट का हाइट अगर है तो उस हाइट के लिए विदाउट लेंस ये मेरा कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा मेरा अल्फा। समझ गए, जितना ऑब्जेक्ट है अगर ये मैंने लेंस निकाल दिया तो ऑब्जेक्ट यहां पे कितना हो रहा है वो एंगल लिख लेने का आपको। तो ये बन जाएगा आपका, ये ठीक ध्यान में रखो। तो अगर लेंस नहीं है तो ये बड़ा वाला बीटा बन जाएगा, ये छोटा वाला कितना बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस है बेटा जो d, वो तो सिंपल सेम रहेगा और इसको बोलेंगे हम अल्फा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको इतना जितना हाइट है उतना ही हाइट अगर हम ऑब्जेक्ट का कंसीडर करते हैं तो वो बन जाता है एंगल सबटेंडेड विदाउट लेंस।
ये आपको ध्यान में रखना है। एंगल सबटेंडेड विथ लेंस इमेज, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो वैसे ही जाएगा। इमेज होने के लिए आपका लेंस का तो जरूरत है ही आपके लिए। लेकिन अभी आपको अगर एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट निकालना है तो आपको वो यहाँ पे ना कि यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP। सो दिस इज D एंड दिस इज, हाँ। सो यहाँ पे अगर मैं वही डायग्राम यहाँ पे निकालूं और इसको डॉट 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 से दिखा दूं तो ये बेटा बन जाएगा अपना अल्फा। तो इसको मैं नाम देता हूं AB, ये AB डैश, इसको बोलते हैं O, इसको बोलते हैं X। तो हमें दो ट्रायंगल मिलेगा। कौन सा दो ट्रायंगल मिलेगा? यहाँ पे आगे ऊपर दिखाते हैं आपको। ऊपर में हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो ऊपर में क्या दिखाता हूँ अपना, ये अपना tan बीटा। तो tan बीटा के लिए आप ये ट्रायंगल कंसीडर करो PXO। सो tan बीटा के लिए आप ट्रायंगल PXO कंसीडर करो और tan अल्फा के लिए आप ट्रायंगल AB, सॉरी tan बीटा के लिए आप दोनों भी ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो, ये भी और ये भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? PXO और ट्रायंगल B डैश AO, कौन सा लेना है मैं आपको बताता हूँ। दो ट्रायंगल है उसके लिए, ओके। वो सिमिलर ट्रायंगल है, tan अल्फा के लिए BAO, tan अल्फा के लिए ट्रायंगल BAO। तो भी क्या बन जाता है दिखाते हैं आपको, व्हाट विल हैपन। tan बीटा, तो tan बीटा अगर यहां से देखा, ओके, AB डैश कितना बन जाएगा, AB डैश अपॉन D, दैट इज H डैश अपॉन D। tan अल्फा कितना बन जाएगा बेटा? tan अल्फा बन जाएगा AB अपॉन D, दैट इज H अपॉन D। तो अपना कितना बन जाएगा? मैग्निफिकेशन देखते हैं ना, मैग्निफिकेशन आपका कितना बनता है? H डैश अपॉन H। मिल रहा है ना आपको? ध्यान से देखो, आपको जो मैग्निफिकेशन चाहिए था वो आपको मिल गया, H डैश अपॉन H। तो अभी यहाँ पे क्या करने का अपन को, दैट वी विल कंसीडर। तो यहाँ पे पहले तो आपको फोकल लेंथ पता करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ कितना होगा? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन, बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन, नॉट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे बट v इज इक्वल टू d एंड u इज निगेटिव, तो क्या बन जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/u। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/u। तो ये आप ध्यान में रखो। अभी फिर से हम जाते हैं मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा लेने के लिए, और tan बीटा ऐसे भी लिख सकते हो आप px अपॉन u, बट px इज इक्वल टू ab, तो ये ab अपॉन u भी लिख सकते हैं। तो बीटा के लिए हम लिखेंगे ab अपॉन u डिवाइडेड बाय अल्फा के लिए AB अपॉन D। बन गया AB अपॉन D। तो ये क्या बन जाएगा? AB अपॉन U मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन AB। तो AB कैंसिल हो गया, D अपॉन U। तो D अपॉन U क्या बन गया आपका? मैग्नीफाइंग पावर बन गया। ओके, यहां से अगर आपको 1/u का वैल्यू लिखना है, हाँ, तो क्या लिखोगे आप?
तो ये 1/u इधर ही रहेगा, 1/u कैसे बनेगा, 1/u बन जाएगा 1/f माइनस 1/d, समझ गए। तो अगर यहाँ पे u का वैल्यू मेरे को लिखना है तो u कैसे बनेगा, d माइनस एफ अपॉन एफ डी, दैट इज उल्टा करेंगे एफ डी अपॉन डी माइनस एफ, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे तो d बन जाएगा d अपॉन u इज इक्वल टू एफ डी अपॉन d माइनस एफ, तो ये d माइनस एफ ऊपर जाएगा, d अपॉन एफ डी इंटू डी माइनस एफ, बन गया। सो d माइनस एफ अपॉन एफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी वो दिया है, तो ये साइन अगर ना ले लो तो आपका क्या बन जाता है, ये यहाँ पे प्लस आएगा, एक मिनट निगेटिव बराबर ही है, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, हाँ, यहाँ पे u कुछ नहीं लेने का, यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करने का, वेरी सॉरी, क्योंकि आपको ये उल्टा मिलेगा 1/d माइनस 1/f, ओके। सो ये कितना बन जाएगा, f माइनस d अपॉन एफ डी, ओके। सो f माइनस d, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में साइन कन्वेंशन उसमें ऐड कर देते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी अपॉन, हाँ ये बराबर है, क्यों, तो क्या करने का है, ये पूरा करके लेने का है और यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपने डालने का है। सो वी विल वंस अगेन डू दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम द कंफ्यूजन। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ ये करने का जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, नाम ही उसका सिंपल माइक्रोस्कोप है। सो विदाउट साइन कन्वेंशन अगर मैं गया तो 1/u कितना बन जाएगा मेरा, इधर आएगा 1/v 1/d, इसको d बोलते हैं अभी, माइनस 1/f, दैट इज f माइनस d अपॉन df, तो u कितना बन जाएगा, df अपॉन f माइनस d। तो ये वैल्यू अभी आपके मैग्निफिकेशन पावर में डालने का, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर कितना है, मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज ab अपॉन u इंटू d अपॉन ab कैंसिल हो गया, तो mp कितना बन गया आपका, d अपॉन u, तो mp विल बी इक्वल टू d अपॉन, ये u का वैल्यू डालो, df अपॉन f माइनस d, तो ये बन जाएगा d इंटू f माइनस d अपॉन df कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर अभी क्या बन जाएगा, f अपॉन f माइनस d अपॉन f, सो मैग्नीफाइंग पावर कितना बन गया, 1 माइनस d अपॉन f, बट इमेज इज ऑन अदर साइड, दिस सेम साइड, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी साइन का उसका निगेटिव लिया तो भी चल सकता है, तो वो ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे माइनस डी लिखने का, तो वो आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा, तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, 1 प्लस डी अपॉन एफ डायरेक्टली आपको मिल गया। तो अगर आपको इमेज यहाँ पे है ना, उसको निगेटिव लेने का ही है ऑलरेडी, और 1 माइनस यू को तो ऑलरेडी फॉर्मूला में डाल के ही वो आया है, तो कॉन्वेक्स के लेंस के लिए इमेज कैसे होता है, और ऑल केसेस में इमेज इस साइड पे होता है, वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे इमेज उसी साइड पे है, द सेम साइड पे है, इसीलिए उसको हमने निगेटिव कर लिया है, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना मिल गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो हमने सीख लिया, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन देन आई विल गेट दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हम आगे चलते हैं। सो केस 2 क्या होता है अपना, केस 2 विल बी इफ sorry not object, image। केस 2 क्या बनेगा, if now we want image at infinity, तो इमेज एट इंफिनिटी के लिए हम दूसरा केस यूज करेंगे, कौन सा केस, इमेज एट इंफिनिटी के लिए हम जो केस मैंने आपको पहली बार पढ़ाया था, अभी इसके पहले पढ़ाया था, वो यूज करेंगे। सो वी विल गेट केस 2 to get image at infinity। तो इंफिनिटी को इमेज लेने के लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल सेटअप करेंगे, लेंस बनाया अपना,
ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे ले लो, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लो, फोकस पे ले लो, तो इमेज भी आपका इन्फिनिटी को बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, इमेज एट इन्फिनिटी। तो सिंपल है, तो ये बन जाएगा u, यही बन जाएगा मेरा f। तो यहाँ पे क्या लेने का, टेक u इज इक्वल टू f, बोथ आर नेगेटिव, टेक v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर फ्रॉम लेंस इक्वेशन, तो बेटा लेंस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So 1 by f is equal to 1 by infinity minus 1 by u, और u को यहाँ पे निगेटिव लिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, therefore 1 by f is equal to 1 by u, therefore u will be equal to f। तो ये मिल गया, आ गया अपना u is equal to f। Now magnifying power, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमने अभी ही एक ये निकाला था, क्या निकाला था, अल्फा ना, हाँ, tan बीटा अपॉन tan अल्फा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा दैट विल बी डायरेक्ट, दैट विल बी डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, d अपॉन u। ओके, लेकिन u कितना है, हाँ यहाँ पे d क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो अपने पहले, अगर वो हम मान ले इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है तो क्या कहाँ चलेगा, तो यहाँ पे अगर आपने d लिया तो यहाँ पे ये इमेज को कंसीडर करते हैं। एक्चुअली अपना इमेज तो हाइयर पॉइंट पे है, हाइयर पॉइंट पे, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस के लिए जितना मानते हैं वो उतना यहाँ पे लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने का है, क्योंकि यहाँ में इसका कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्टली आपको याद में रखना है, मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगा d अपॉन f और d अपॉन u। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है देन वी विल गेट इट्स टू केसेस, वन केस विल बी ऑफ ऑब्जेक्ट kept such that we will get image at least distance of distinct vision, वो बन जाएगा d। तो v is equal to d नेगेटिव, और उस केस में मैग्नीफाइंग पावर हमें कितना मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर विल बी 1 प्लस d अपॉन f, 1 प्लस d अपॉन f। तो ये बात आपको जरूर नोट डाउन करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड, to get image at infinity, we want image at infinite distance, then you use directly magnifying power to be d upon u or d upon f। so let me revise the thing। simple microscope में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, खाली तीन फॉर्मूला, तीन भी नहीं, दो ही फॉर्मूला यूज करना है। क्या क्या यूज करना है, एक तो m is equal to, so remember सिंपल माइक्रोस्कोप, अभी मैंने आपको नोट डाउन करके दिया है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैंने क्या बताया आपको, नंबर 1 इमेज एट d, तो mp कितना बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d अपॉन f, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इमेज एट इंफिनिटी लेना है, तो मैग्नीफाइंग पावर लेना है आपको d अपॉन f और d अपॉन u, ये बन गया। ये दो फॉर्मूला अगर ठीक से ध्यान से आप देखोगे, उसका यूज करोगे, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, not a single problem you will face। So that was all about the simple microscope। Now we will go for some different assembly। मतलब क्या हुआ, इसमें हमने अपना और एक लेंस जोड़ दिया, तो एक तो पहले था लेंस और एक उसके साथ लेंस जोड़ दिया, तो बन गया अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो अभी हम जाते हैं सीखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या आएगा अभी हम पता करेंगे। We will try to recognize what comes in the compound microscope. Compound microscope. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस लेते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन कैसा करता है मैग्नीफाइड। तो आधा मैग्निफिकेशन तो यहां पे ही होता है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और दिस image serves as object and then its magnified virtual and erect image is observed। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या करता है, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो अभी अपन को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम एक लेंस निकाल के लेते हैं। ये हो गया अपना लेंस, ये बन गया O। अभी आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज करना है लेकिन मैग्नीफाइड। तो एट इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा, इन्फिनिटी के लिए इमेज आपका डिमिनिश हो जाएगा। बियॉन्ड सी होगा तो भी नहीं होगा, एट सी भी उतना ही साइज का मिलेगा। तो हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, C1 एंड F1। तो ये बन गया C1 एंड F1। तो इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं कौन सा भी। तो अभी क्या बन जाएगा बेटा, देखो वन रे पैरेलल। तो यहां से इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे फोकस लगाते हैं, ये बन गया ऐसा और ये बन जाएगा ऐसा। तो कहीं तो भी यहाँ पे इसका इमेज बने। थोड़ा सा मैं ठीक से उसको निकालता हूँ। ओके बेटा, तो इसके लिए एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। क्या आइडिया है, तो पहले आपका डायग्राम निकाल के लेने का, पहले आपका डायग्राम मतलब रेज निकाल के लेने का, क्योंकि बोर्ड में लिखने के लिए बहुत टाइम दिक्कत आती है आपको, ये कैसे लिखने का, ये क्या करने का। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया बता देता हूँ। इसको ऑब्जेक्ट निकालो, कहीं पे भी उसका ऐसे निकालो बराबर से यहाँ से, लेकिन यहाँ से भी ये थोड़ा सा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एक्चुअली इट्स वेरी इजी, बट वाइल ड्राइंग समझता है कितना डिफिकल्ट है। तो मैं अभी आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग दैट, स्टिल समटाइम्स आई मे कमिट मिस्टेक्स विद दैट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, अभी हो जाएगा बेटा। इतना कुछ ये पहले निकाल के लेने का, तो ये इतना जा रहा है, तब ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है ठीक से निकाल के देता हूँ। एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है बीच में, वो डिस्टेंस थोड़ा एग्जैक्टली आपको लेने का होता है। तो मैं पहले इमेज ड्रॉ करके लेता हूँ। यहाँ पे सपोज आपको आपका इमेज मिल गया, मैग्नीफाइड इमेज मिल गया। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट छोटा लेता हूँ, शायद हो जाएगा ऐसा लगता है। बराबर है,
हो गया। तो ये बन गया मेरा फोकस F1, ये बन गया C1, हो गया बराबर F2। Now what happens? This is the object, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इस कुछ नहीं लिखता हूं यहां पे। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा UO। इसको क्या बोलेंगे? UO। UO क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अभी क्या करते हैं, और मतलब ये FO बन जाएगा। और यहां पे क्या करते हैं, अभी दूसरा जो है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका। तो नेक्स्ट आईपीस के लिए क्या करेंगे? आईपीस के लिए लेंस ऐसा रखेंगे, we will put the lens such that the object will come between focus and optical center। समझ गए बेटा? So for second आईपीस के लिए हम कैसे रखेंगे आईपीस? such that my image will be image from the objective। जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बन गया है, it will serve as an object now and it will be तो ये बन जाएगा मेरा इसका ट्रेसिंग। बन गया? ठीक है। तो इसको ठीक से निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम? we will set the eyepiece such that we will get virtual and erect image of the object। तो यहाँ से ये फोकस पे जाएगा, सॉरी इसका फोकस थोड़ा यहाँ पे है ना, थोड़ा आगे करते, वो एडजस्ट कर लेते हैं। जितना हमें चाहिए उतना फोकल लेंथ हम एडजस्ट करते हैं। ओके, कहीं पे भी यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। सो दिस विल बी द फाइनल इमेज। ये क्या बन जाएगा? फाइनल इमेज। तो अभी इसको क्या बोलते हैं हम? तो ये बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा आईपीस। ये क्या बन जाएगा मेरा? आईपीस। ओके, और ये बन जाएगा इमेज डिस्टेंस VE। ये बन जाएगा VO। ओके, कहीं पे भी यहाँ पे ये FE बन जाएगा, तो बाद में दिखाएंगे उसको FE। एंड ये बन जाएगा मेरा UE। तो UO क्या बन गया मेरा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। FO क्या बन गया? फोकल लेंथ। ओके, और ऑब्जेक्टिव VO क्या बन गया? VO भी लिख के लेते हैं यहाँ पे। तो अपना VO क्या बन गया? इमेज डिस्टेंस किसके लिए? फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने पूरा जो पार्ट है, ये मेरा पूरा पार्ट किसके लिए बन गया? ऑब्जेक्टिव। अब इमेज के लिए क्या बन जाएगा? तो इमेज के लिए UE क्या बन जाएगा? इमेज मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। आईपीस को भी ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ये यहाँ पे दो केस कंसीडर कर सकते हो। पहली वाली केस में ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, so that the image will be formed as a real and inverted image, but which will be such that it will be more magnified. And
then by keeping the eyepiece near to the image such that that image will serve as an object, and by using the phenomenon of getting image at least distance of distinct vision, वो बोलते हैं ना, वो phenomenon यहाँ पे use करेंगे such that ये जो image बन गया objectives के लिए, ये इसका बन जाएगा object, और वो such that it will be in between its optical center and focus. तो ये इसका focus हुआ, ये इसका, और ये optical center हो गया, तो optical center और focus के बीच में इसका object बन गया, तो उसका virtual and erect image, अपने लिए तो inverted ही है, still the image is inverted, but इसके लिए उसका virtual and erect image मिल पाएगा. तो UE बन गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. VE फाइनल इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, और FE क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. और यहाँ पे हम एक ट्यूब लेंथ बोलते हैं, क्योंकि इसको ये पूरा असेंबली को क्या करते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं. तो आपको दिखता है ना टेलीस्कोप का ट्यूब, वो ट्यूब लेंथ के लिए ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ L. इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ L. सो फ्रेंड, that was all about the construction of compound microscope. तो हमने सिंपल में क्या सीखा, सिंपल में हम एक ही लेंस लेते हैं, बाइकॉन्वेक्स लेंस. At first we are keeping the object in between focus and optical center such that we will get the image at least distance of distinct vision. उसके लिए m is equal to 1 plus d upon f हो गया मैग्निफिकेशन. सेकेंड केस में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट exactly at focus such that we will get image at infinity. उसके लिए फॉर्मूला बनता है अपना m is equal to d upon f और d upon u बनता है. Now in order to get more magnification, इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन की तलाश में अगर हमने दो लेंस यूज किया, दो बाइकॉन्वेक्स लेंस, तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसमें से जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एंड जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हम आईपीस. तो ऑब्जेक्टिव का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव का काम एक ही है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने का है. तो इट विल मेक द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO, this will be image distance VO, and this will be the focal length FO. बन गया. बाद में दूसरा, eyepiece is located such that the image formed by objective will serve as object for the eyepiece. Secondly, the object will be situated such that it will be in between focus and optical center. तो इसका focal length कितना है, FE. तो यहाँ पे focus बन गया, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, तो इन बिटवीन बन गया. तो ये फॉर्म करेगा इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर दिस. तो V बन जाएगा D. तो यहाँ पे V बन जाएगा आपका D. तो V विल बी D. अगर V D बन गया तो क्या बन जाएगा, अभी अपना इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इसके लिए, और फाइनल के लिए वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, virtual and inverted. Okay, are you getting my point? So I think it's enough for today. In tomorrow's lecture we will discuss about the magnification formed by the compound microscope, and then we will go for the astronomical telescope. So till that, I hope you have understood that. I will suggest you to go through the lecture once, twice, thrice. There is no problem. उसको ठीक से रीड कर लो, आपके नोटबुक में उसका डायग्राम बना के उसके प्रॉब्लम्स वगैरह जो मैंने पहले लिया है प्रिज्म का, उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करो. एंड टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स. थैंक यू, बाय बाय.